مجھ سے تو آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ ہم کوئی ویکسین آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں نیب رکاوٹ ڈال رہی ہے. میری نظر سے کوئی بھی پریکٹیکلی ایسی چیز ٹیکنیکلی گزری نہیں ہے. رولز قاعدے قانون کے مطابق چلیں گے تو وہ نہیں ہوگا. میں اس چیز سے تو ایگری نہیں کرتا کہ نیب کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کام اس وجہ سے رکا ہوا ہوگا. مشیر داخلہ اور احتساب مرزا شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ویکسین درآمد کرنے جیسے معاملات وزیر اعظم خود دیکھتے ہیں. ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ ویکسین منگوانی ہے اور اس میں نیب رکاوٹ بن رہا ہے. جیو نیوز کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کو جواب دیا کہ اگر رولز قاعدے اور قانون کے مطابق چلیں گے تو نیب سے مسئلہ نہیں ہوگا. وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ نیب کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کام رکا ہوا ہوگا. اس سے پہلے اسد عمر نے کہا تھا کہ اگر ہم ویکسین کی پہلے سے ہی بکنگ کرا لیتے تو ابھی نیب کی تحویل میں بیٹھے ہوتے. وفاقی وزیر شفقت محمود نے نیب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیب کی وجہ سے دنوں میں ہونے والا کام مہینوں میں ہو رہے ہیں. جیو نیوز کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم حکومت کا اختیار ہے. نیب کی پریس ریلیز پر حکومت کو اس کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروانی چاہیے. نیب نے بیوروکریسی کے خوفزدہ ہونے کے بارے میں وزیر خزانہ کا بیان مسترد کر دیا. کہا کہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی آئین کے مطابق کام کرے تو اسے نیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. نیب کے 1276 موجودہ ریفرنسز میں بیوروکریسی کے خلاف مقدمات نہ ہونے کے برابر ہیں. وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا تھا کہ بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے. حکومت نیب قانون میں ترمیم کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے ٹیلی فونک رابطہ. افغانستان کے استحکام سلامتی پر گفتگو. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان افغان رہنماؤں کے اجلاس کی میزبانی کرے گا. سابق صدر حامد کرزئی، صلاح الدین ربانی، افغان صدر کے نمائندہ خصوصی عمر داؤد زئی اور سابق وزیر خزانہ عمر ذاخیل وال کو اجلاس میں شرکت کی دعوت. عمر ذاخیل وال اور عمر داؤد زئی نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کر دی. وزیر اعظم آج ازبکستان میں جنوب اور وسط ایشیائی ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے 2 روزہ دورے پر تاشقند پہنچیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات. افغانستان بالخصوص تاجک افغان سرحد کی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاک تاجک دفاعی اشتراک بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. تاجک وزیر دفاع نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا. پاکستان سے بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم. وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی روسی منصب سرگئی لاروف سے تاجکستان میں ملاقات. افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر گفتگو. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغان قیادت میں افغانوں کو قبول اور افغان امن عمل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. شاہ محمود قریشی کی چین کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، سی پیک، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. داسو میں ڈیم منصوبے کے قریب پیش آئے بس حادثے اور چینی شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تعزیت. افغان صورتحال پر کہا کہ اجتماعیت کے حامل وسیع البنیاد اور جامع سیاسی تصفیے کے لیے تمام افغان فریقین مل کر کام کریں. وزیر خارجہ تاجکستان کا دورہ مکمل کر کے ازبکستان روانہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اپر کوہستان میں برسین لیبر کیمپ سے داسو جانے والی بس کھائی میں گرنے سے 9 چینی اور 3 پاکستانی چل بسے. کھائی میں گرنے کے بعد بس میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا. حادثے کے زخمیوں کو طبی امداد دی گئی. مزید تحقیقات جاری ہیں. ترجمان نے کہا کہ اس معاملے پر چین کے سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں ہیں. پاکستان مختلف منصوبوں اور اداروں میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی حفاظت اور سلامتی کو بہت اہمیت دیتا ہے. افغان طالبان کا پاکستانی سرحد سے متصل ضلع اسپن بولدک پر قبضہ. افغانستان کی جانب سے باب دوستی کے کنٹرول کا دعویٰ. پاکستان نے باب دوستی بند کر دیا. تجارت معطل، اضافی سیکیورٹی تعینات. ترجمان طالبان کی بھی شہریوں اور تاجروں سے 1 دن کے لیے باب دوستی کی جانب نہ آنے کی درخواست. افغان حکومت کا اسپن بولدک میں طالبان کا حملہ پسپا کرنے کا دعویٰ. افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان کی کمر توڑ دیں گے.
जेर कब्जा इलाका जल्द वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क भर से पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर भेज दी। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बुलंदरी में खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर के हल के लिए पड़ी। आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे तो बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा देंगे। मीरपुर में जलसे से राजा परवेज अशरफ का खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर का साथ कभी नहीं टूटेगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी से होगा। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का मुकाबला लोटों से है। सईद गनी बोले कि नालायकों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पैसे तकसीम करने वाले वजीर को गले से पकड़कर कश्मीर से बाहर निकाल देना चाहिए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने कहा कि उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सियासत और गुफ्तगू होनी है तो फिर यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। शहरी रहमान बोले कि ज़बान दराजी की हद होती है। गंदी ज़बान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग आसिफ किरमानी ने कहा कि मईशत के साथ उन्होंने अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदेवान शहजाद वसीम का जवाब, कहा कि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं कि हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका बैठे हैं। दूसरे दवाएं लेने गए और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियां भेजेंगे, जिंदाल को खुश करेंगे, फिर कहें हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान बोले कि मुहिब्बे वतन की तारीफ अपने अमाल से देखें। मुहिब्बे वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान में दीवार के पीछे देखने की सलाहियत है। वो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चोरों और लुटेरों की वजह से मुल्क दलदल में फंसा है। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपये महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे और 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे, जबकि 1 लीटर भट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। सिंध में कोरोना फिर सर उठाने लगा। पाबंदी और बंदिशें वापस लग गईं। आज से रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। सिनेमा हॉल्स भी बंद। जुमे से साहिल समंदर पर पिकनिक भी नहीं मना सकते। केंझर झील की सैर पर भी पाबंदी। पार्क्स और वाटर पार्क्स पर भी ताला पड़ जाएगा। हफ्ते से पहली और 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। मंगल को कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% से जायद और सूबे भर में तकरीबन 7.5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5% से जायद केसेस का मतलब है कि सूरत हाल खराब है। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मौलनवाल, खुदबूर, खानिका झोगियां, नानो डोगर और फैजपुर के इलाके मुतासर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुल्हिका वादियों में खौफ और हिरास। दालबंदी में आंधी और बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान बहक, 15 अफराद जख्मी। तेज हवा से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, किनाल रोड, गड़ी शाहू और डेविस रोड पर बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमात का कहना है कि लाहौर और गिरदुनमा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बिजली के बार ब्रेकडाउन ने कराची को पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। दाबिजी पंपिंग स्टेशन मफलूज हो गया। 10 से 12 जुलाई तक 3 दिन में 4 बार बिजली के ब्रेकडाउन से 3 लाइनें फट गईं। 50 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हुआ। कराची वाले पानी को तरस गए। कराची को यौमिया 177 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। साबिक सदर ममनून हुसैन इंतकाल कर गए। बेटे अरसलान के मुताबिक ममनून हुसैन कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। 2 हफ्तों से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली और मौलाना फजल रहमान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजहार अफसोस।
एंटी करप्शन ने रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कहा कि रिंग रोड स्कैंडल में किसी सियासतदान की बराह रास्त सरमायाकारी की इत्तला या सबूत नहीं है। जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि साबिक कमिश्नर पिंडी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जिसका भी नाम आएगा कानून के मुताबिक देखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक रिंग रोड स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। काबीना के किसी रुकन के रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस होने का जिक्र नहीं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मलाला यूसुफजई से मुतल्लिक मज़मून पर पाबंदी। शहरी रहमान मामला सेनेट में ले आई, कहा कि आप मलाला और बेनज़ीर जैसी ख़वातीन को अपना हीरो नहीं समझेंगे तो अल्लाह आपका हाफिज़ है। आप नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि मलाला से मुतल्लिक मज़मून पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने छापा था। हुकूमत पंजाब की इस हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुल्तान के थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में 2 नौजवानों पर तशद्दुद के वाक़े में एक खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तशद्दुद करने वालों ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले दोनों नौजवानों पर उनकी अजीज़ खातून को फ़ोन पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया। तशद्दुद करने वालों ने दोनों नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाए। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में वोट मुस्तरद होने के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वो तमाम इख्तियारात थे जो चेयरमैन सेनेट के होते हैं। नतीजे का ऐलान भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर किया गया। आइन में पार्लियामेंट और अदालतों की अपनी हदूद में रहने का तयन किया गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालतों के मातहत नहीं। फारूक नाइक ने जवाबी दलाइल में कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बल्कि मुतल्लिका वजीर देता है। नताइज का ऐलान करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बरतानिया तालिबान की मुमकिना हुकूमत तस्लीम करने पर रजामंद होने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर दिफा बेन वेल्स ने कहा कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो बरतानिया उनके साथ काम करने को तैयार है। कहा कि आलमी बिरादरी के पास कोई दूसरा रास्ता ना होगा कि आलमी असूलों पर अमल पैरा किसी भी अफगान हुकूमत के साथ काम करे। तालिबान हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की तो ताल्लुकात पर नज़रसानी कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसराइल में सिफारत खाना खोल लिया। तेल अवीव में सिफारत खाना खोलने की तकरीब में इसराइली सदर भी शरीक हुए। यूएई के सफ़ीर ने कहा कि सिफारत खाना खोलना बढ़ते ताल्लुकात में अहम संग मील है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के लिए मास्क 19 जुलाई के बाद भी लाजमी होगा। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि शहरियों को कोरोना के खतरे की जिद पर नहीं छोड़ सकते। सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बहरीन ने 16 ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। नई फहरिस्त में ट्यूनिस, ईरान, इराक, मैक्सिको, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और वियतनाम पहले से ही शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान। सेल्फ आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल कप्तान ओवेन मॉर्गन समेत 9 खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। 16 खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर। T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम नॉटिंघम रवाना कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।